Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to look for the important news from the Daily Hindu edition of 18th October. Now friends, as I am telling you that we are now just within 2 months of our exam. So anything which is coming in the newspaper now becomes very important for our CLAT, ALET and other law entrance exam. कोई भी news आ रहा है now it becomes very important. So now we are going to focus on the important news and you are advised to write down all the important news. So let's start with the news. The first news is Kerala governor says that he can sack errant minister. तो यहाँ पे जो केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, so it is related with the university laws bills where he has refused to sign the university laws bill. So Governor Arif Mohammad Khan, he has said that he can remove ministers from their post if they continue to lower the dignity of his office. Fine, so he has refused to sign the university laws amendment bill 2022. So यहाँ पे जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी आ जाता है. जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है दैट गवर्नर्स वेर बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर इन मैटर्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, सो अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो वहाँ पे जो गवर्नर है जो भी डिसीजन लेता है, ठीक है, तो दैट इज बेस्ड ऑन एड एंड एडवाइस. ओके, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो दैट इज ओवर हियर. द नेक्स्ट न्यूज इज जस्टिस चंद्रचूड़ appointed as the 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. यहाँ पे है दैट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अपॉइंटेड, नाउ दिस इज हैज़ बीन अपॉइंटेड जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. Okay, so he will take oath on November 9th, a day after the incumbent chief justice who was 49th chief justice of India, who is the 49th chief justice of India, Uday Umesh Lalit. He demits office after attaining the age of 65. So यहाँ पे अगर हम देखें तो मिस्टर जस्टिस ललित हैं, ही हैज़ अ ब्रीफ टेन्योर ऑफ 74 days, बट जस्टिस चंद्रचूड़ will serve as the CJI for 2 years and he will demit office on November 10, 2024. Now Justice Chandrachud, he is presently the senior most Supreme Court judge after Justice U. Lalit. Now Justice Chandrachud जो है, now before his appointment to the top court, Justice Chandrachud he served as the Chief Justice of Allahabad High Court from October 31, 2013, and then he was also a judge at the Bombay High Court from March 2000 to October 2013. और जो इनके important judgments हैं, it relates with recognizing the right to privacy as fundamental right, then decriminalization of section 377 of Indian Penal Code related to homosexuality and allowing women to enter Kerala's Sabrimala temple. Now continuing with our what we have done. So यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो PDT आचार्य हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, ही हैज सेड दैट नो गवर्नर कैन डिसमिस एन इंडिविजुअल मिनिस्टर फ्रॉम अ स्टेट कैबिनेट अनलेस रिकमेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. ओके, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होता है जो एक गवर्नर का, दैट इज दैट ही शुड टेक द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दैट गवर्नर is the appointing authority of the chief minister, but he cannot appoint any person of his choice as a state minister, and the state minister can be appointed only on the recommendation of the chief minister, and if a minister has to be removed from the post, it can only be on the advice of chief minister. Now coming to the case, received center's approval for release of 11 Bilkis Bano case convicts. हमने बहुत दिन पहले किया था about the release of 11 convicts of Bilkis Bano case. Fine. So यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, it has given approval for the premature release of 11 prisoners, ऐसा गुजरात ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है. ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इनका रिलीज था, ठीक है ना, that was based on the policy ओके of 1992. तो एक 2014 में भी पॉलिसी आया था, ठीक है, तो वो पॉलिसी जो है ये इनके ऊपर लागू नहीं होता है, इनके ऊपर पुराना पॉलिसी लागू होता है, इट इज़ 1992. तो 1992 के पॉलिसी में क्या था, इफ यू विल सी दैट ऑल द प्रिजनर्स हु हैव कंप्लीटेड 14+ years इन द प्रिजन अंडर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड ओपिनियंस ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न्स हैव बीन ऑब्टेन्ड एज पर द
प्री मैच्योर रिलीज पॉलिसी ऑफ 1992. ओके, नाउ उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट हैज़ कन्वेड द कंकरेंस और अप्रूवल अंडर सेक्शन 45 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर प्री मैच्योर रिलीज ऑफ 11 पर्सन्स. उसके बाद यहाँ पे ये भी देखेंगे कि रेमिशन जो है, ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था उसमें एक रेमिशन पॉलिसी आया था, तो उस रेमिशन के अंडर इनको जो है रेमिशन गुजरात गवर्नमेंट ने नहीं दिया है. तो गुजरात गवर्नमेंट का अगर हम देखेंगे तो इट हैड कंसिडर्ड द ओपिनियंस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स, गुजरात जेल सुपरिटेंडेंट्स, जेल एडवाइजरी कमेटी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिटेंडेंट, CBI स्पेशल क्राइम ब्रांच एंड मुंबई सेशन कोर्ट. देन इफ़ यू विल जस्ट सी पॉलिसीज़, तो यहाँ पे देखिए पॉलिसी जो है दैट इज़ 1992 प्री मैच्योर रिलीज पॉलिसी, जिसके अंडर इनको रेमिशन दिया गया है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये भी बात है दैट स्टेट हैज सेड इट वाज द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ व्हिच हैड अलाउड इट टू कंसिडर द केस ऑफ द 11 प्रिजनर्स अंडर द 1992 पॉलिसी, नॉट अंडर द 2014 पॉलिसी. ठीक है. The next is India to host global meet on investment in tourism sector. So India is going to hold a meet on investment into its tourism sector. India is going to become the president of G20. This year the president is Indonesia, and the G20 summit will be held in Bali. After that India will take the presidency, and the focus will be on global investment in tourism sector, hospitality industry. The next is Interpol has no role in curbing state-sponsored terrorism, says Secretary General Jürgen Stock. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इंटरपोल की जो है एक असेंबली चल रही है, तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी जनरल है जुर्गेन स्टॉक, ही हैज सेड दैट इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरपोल का फुल फॉर्म है, विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन लियोन इन फ्रांस, LYON, लियोन इन फ्रांस, यहाँ पे इंटरपोल का हेडक्वार्टर है. So he has said that that they have no role in curbing this state-sponsored terrorism, and it focused primarily on ordinary law crimes. So यहाँ पर हम देखेंगे that PM नरेंद्र मोदी he is going to address the 90th General Assembly of Interpol on Tuesday, okay, and Home Minister Amit Shah will give valedictory address. उसके बाद हम देखेंगे तो इंटरपोल का अगर हम काम अगर देखेंगे तो इंटरपोल हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिपोजिटरी ऑन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉरेन टेररिस्ट हाइडआउट्स एंड टूल्स फॉर हेल्पिंग द मेंबर कंट्रीज टू आइडेंटिफाई, टारगेट एंड अरेस्ट द टेररिस्ट. उसके बाद सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि दैट लेस देन 1% ऑफ द फंड्स कुड बी इंटरसेप्टेड एंड रिकवर्ड बाय एनफोर्समेंट एजेंसीज. क्रिमिनल गैंग्स ऑल्सो यूज्ड क्रिप्टो करेंसीज टू मूव प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड इवेड डिटेक्शन. नाउ दिस इज, हम क्रिप्टो करेंसी पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ये एक फॉल आउट है क्रिप्टो करेंसी का. जैसे कि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे इंडिया में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जो है वो गवर्नमेंट फेवर नहीं करती है, बल्कि RBI इज कमिंग विद इट्स ओन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. Now coming to Interpol, so see the Interpol's global stop payment mechanism, okay, which is an anti-money laundering rapid response protocol. It has helped the member countries to recover $60 million in the past 10 months. उसके बाद जो global crime trend report है, it highlights that the massive increase in online child sexual exploitation and abuse. तो यहाँ पे इंटरपोल का एक है इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस, जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को हेल्प किया है टू आइडेंटिफाई एन एवरेज ऑफ 7 चाइल्ड अब्यूज विक्टिम्स एवरी डे, विच इज़ 30,000 विक्टिम्स आइडेंटिफाइड वर्ल्ड वाइड. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो CBI जो है वो इंटरपोल के साथ मिलके 2 ऑपरेशन किया है पास्ट में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक है ऑपरेशन चक्रा, ठीक है, और दूसरा है ऑपरेशन मेघ चक्र. ये दोनों ऑपरेशन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ऑपरेशन चक्रा एंड ऑपरेशन मेघ चक्र. ऑपरेशन चक्र किसके लिए था? फॉर अरेस्टिंग साइबर फ्रॉड गैंग्स, ठीक है ना. और ऑपरेशन मेघ चक्र दिट वाज टू कर्ब चाइल्ड abuse and pornography. Then please write me in the comment box that who is the president of Interpol. The next is at Defense Expo India to pitch military tools to Africa and Indian Ocean region countries. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो here we are talking about the Defense Expo
ओके, सो गांधीनगर में हो रहा है पहली बात तो डिफेंस एक्सपो, और इसका 12th एडिशन है जो गांधीनगर में हो रहा है। यहाँ पे दो मेजर कॉन्क्लेव है, पहला इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग एंड इंडियन ओशन रीजन प्लस कॉन्क्लेव, वेयर इंडिया विल पिच इट्स मिलिट्री हार्डवेयर टू वेरियस कंट्रीज। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दैट एट द थर्ड डे ऑफ द डिफेंस एग्जीबिशन 451 पार्टनरशिप्स इन टर्म्स ऑफ MOU, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट लॉन्चेस आर एक्सपेक्टेड, ओके, कंपेयर्ड विद 210 इन लास्ट ईयर। अब हम सेंटर का टारगेट देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट टू अचीव अ मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर ऑफ $25 बिलियन। ठीक है, इंडिया का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है उसका कितना साइज होना चाहिए, दैट इज $25 बिलियन और ₹1,75,000 करोड़, विच विल इंक्लूड एक्सपोर्ट्स ऑफ $5 बिलियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दैट बाई 2025 इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट कितना होगा, $5 बिलियन, और इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कितना होगा, $25 बिलियन। ओके, नाउ इफ यू विल जस्ट टॉक अबाउट व्हाट इज करंट स्टेटस, तो जो करंट स्टेटस है दैट इज द कंट्रीज defense exports which have been growing year on year basis. तो in 2021-22 they have touched ₹13,000 करोड़, और अभी इस फाइनेंशियल ईयर में जो कंप्लीट नहीं हुआ है we have touched the figure of ₹8,000 करोड़। उसके बाद who is the director of defense exhibition organization in Department of Defense Production, Achal Malhotra, they have said that 75 countries will be participating in defense expo and उसमें से 53 countries have been invited from Africa for IADD. What is IADD? So IADD is India Africa Defense Dialogue. तो इसका सेकेंड एडिशन होने वाला है। सी, डिफेंस एक्सपो का 12th एडिशन है, बट इट इज गोइंग टू बी द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग एंड इंडियन ओशन रीजन प्लस कॉन्क्लेव। फाइन, so 53 African countries and 44 IOR plus conclave countries. Okay, so this edition has the largest participation and spread over 1 lakh square meters with 75 countries, 33 foreign ministries, 1,340 companies and 10 state pavilions are here. The next is about हमने कुछ दिन पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। तो ये इंडिया का जो फिगर है ये दो पीरियड को कंपेयर कर रहा है, ध्यान से देखना, 2005-06 एंड 2019-21, इस दो पीरियड को कंपेयर कर रहा है। तो इसमें आप देखोगे तो कोविड-19 के इम्पैक्ट का जो पीरियड है वो थोड़ा सा एक्सक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट का एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि दैट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट COVID-19 impact. So यहाँ पे हम देखेंगे that India has by far the largest number of poor people worldwide, that is at 22.8 crore, followed by Nigeria at 9.6 crore. उसके साथ साथ there are 9.7 crore poor children in India in 2019-21. So these two data are important. अब हम बाकी डेटा पे फोकस करते हैं, that is about 51.5 crore people have exited poverty, means they have come out of poverty during this 15-year period. Okay, and then out of which 2/3 exited in the first 10 years and 1/3 exited in the next 5 years. उसके बाद ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। अब ये रिपोर्ट क्या सजेस्ट करता है, that the incidence of poverty has fell from 55.1% in 2005-06 to 16.4% in 2019-21 in the country, and deprivations in all 10 MPI indicators have also seen a decrease. अब जो 10 MPI indicators होते हैं पहले इसको कर लेते हैं। ये indicators are related to health, education, standard of living. Okay, these are the 3 indicators. We have 10 indicators related to health, education and standard of living, and the health, education and standard of living all they have 1/3 weightage. Now coming to qualitative data, so improvement in MPI for India has significantly contributed to the decline in poverty in South Asia, and it is for the first time that South Asia is not the region with the highest number of poor people. The highest number of poor people region is Sub-Saharan Africa, that is 57.9 crore. Okay, उसके बाद सेकेंड चीज़ क्या है इस रिपोर्ट के बारे में, that the report doesn't fully assess the effects of COVID-19 pandemic on poverty in India, as 71% of the data from National Family Health Survey were collected before the pandemic. Then
if we will just see, the global MPI identifies people as multidimensionally poor if their deprivation score is 1/3 or higher. Now coming to India, so Bihar, which was the poorest state in 2015-16, has seen the fastest reduction in MPI value in absolute terms. तो यहाँ पे जो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी है वो पहले 77.4% था 2006 में, नाउ इट इज 34.7%. ओके, now two datas, if you will just see, these are the datas which we have done over here, that is India has by far the largest number of poor people worldwide at 22.8 crore, followed by Nigeria at 9.6 crore. उसके बाद 2/3 of these people live in household in which at least one person is deprived in nutrition, and then there were also 9.7 crore poor children in India in 2019-21. The next is PM Modi inaugurates One Nation One Fertilizer scheme. So our Prime Minister has inaugurated 600 Kisan Samriddhi Kendras. Along with that, One Nation One Fertilizer scheme. उसके बाद जो ये किसान समृद्धि केंद्रास हैं, इनका काम क्या होगा, दैट दे विल फंक्शन एज ए हेल्पिंग सेंटर्स फॉर फार्मर्स. ओके, then the next is that in this same function he has released the 12th installment of PM Kisan Samman Nidhi, and under this scheme rupees 16,000 crore will be credited into the bank accounts of over rupees 8.5 crore farmers, and rupees 2 lakh crore has been transferred to farmers till now. उसके बाद कमिंग टू वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम, तो इस स्कीम में क्या होगा कि इस स्कीम में सारे जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, उनका एक ही ब्रांड होगा, दैट इज़ भारत. ठीक है ना. सो ही सेड फर्टिलाइजर्स विल बी रीब्रांडेड एज भारत टू हेल्प फार्मर्स, and it would reduce the prices of major fertilizers as transportation cost would be regulated. Okay, उसके बाद if you will just see in 2023 it has been declared as International Year for Millets. Okay, it was an Indian initiative and accepted by Food and Agriculture Organization to declare 2023 as International Year for Millets. Okay, now friends, coming to important policy. So यहाँ पे देखिए, wheat price is there is a report that wheat price will increase during this festive season. ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि that they will intervene in the market if the wheat price increases abnormally. ठीक है ना, एक एश्योरेंस होता है. तो यहाँ पे जो यूनियन सेक्रेटरी ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सुधांशु पांडे हैं, इन्होंने कहा कि that India has sufficient stock of wheat and rice available in the central pool to meet the requirements of National Food Security Act and other schemes. अदर स्कीम्स जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये सब. यहाँ पर हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि हमने ये पास में भी पढ़ा है कि थोड़ा सा बारिश की वजह से जो राइस का जो आउटपुट है वो इंडिया में कम हुआ है. एंड ये जो हमने पढ़ा था कि CPI का जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, दैट वाज बिकॉज ऑफ फूड प्राइसेस एंड दैट आल्सो बिकॉज ऑफ लो आउटपुट ऑफ खरीफ क्रॉप ड्यू टू अनयूजुअल पैटर्न ऑफ रेनफॉल. फाइन. तो यहाँ पे मिस्टर जो हमारे जो यूनियन सेक्रेटरी हैं फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, ही इज सेइंग दैट big farmers had not released last Rabi season's wheat harvest to the market, which was normal, and said due to better prices farmers had preferred private traders to the government for selling the wheat. कि better prices जो हैं वो private traders दे रहे थे, तो farmers have sold their wheat to them. उसके बाद now see, he has said that the procurement of paddy during the Kharif marketing season had started and hope that it will surpass 900 LMT. Okay, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे that quantity of around 58 LMT paddy, okay, which is 39 LMT in terms of rice, have been procured up to October 16, which is higher as compared to the procurement of last season. उसके बाद हम देखेंगे that rainfall condition this year has been fairly good and the production of paddy is expected to remain normal. ये उन्होंने कहा है. Now friends, ये न्यूज़ हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि मध्य प्रदेश has become the first state to launch medical text books in Hindi. So now here if we'll just see that within next 3 years India is going to offer textbook for medicine, nursing and pharmacy in all major Indian languages, as confirmed by Chanu Krishna Shastri, who is the chairman of the Committee for Promotion of Indian Languages under the Ministry of Education. Okay, now this committee is already in talks with National Medical Commission and other boards for this initiative. तो यहाँ पे जो सेंट्रल आइडिया है वो है दैट इन 10 years टाइम स्टूडेंट्स विल हैव द ऑप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफ सपोर्ट टू स्टडी सब्जेक्ट्स इन देयर मदर टंग.
नाउ सम मेजर अपॉइंटमेंट्स, तो आप फटाफट इसको लिखते चली जाइए। इराक्स न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज अब्दुल लतीफ रशीद। ओके, तो हम जानते हैं कि इराक में कुछ प्रॉब्लम चला था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिले हुए थे। फाइन, सो नाउ ही हैज़ बीन इलेक्टेड टू द लार्जली सेरेमोनियल पोस्ट रिजर्व फॉर इराक्स कुर्दिश माइनॉरिटी। ओके फाइन, सो यहाँ पर हम देखेंगे जो मिस्टर रशीद है, ही हैज़ इलेक्टेड टू द दिस पोस्ट, ओके, फॉर इराक्स कुर्दिश माइनॉरिटी। ओके, and he has named Muhammad Shia al-Sudani as Prime Minister designate. Now important news coming from स्वीडन। तो स्वीडन में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे इलेक्शन हुआ था और वहाँ पे मॉडरेट पार्टी स्वीडिश डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ पे दिस फार राइट कोalition हैज़ वन। नाउ द स्वीडिश पार्लियामेंट हैज़ इलेक्टेड उल्फ क्रिस्टरसन, okay, the conservative moderate party leader as the prime minister at the head of minority coalition, okay, that is being supported by once radical far right person. So यहाँ पर हम देखेंगे that anti immigration populist Swedish Democrats Mr. Kristersson presented an agreement, okay, to form the government. बट यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच पार्टी वन द हाइस्ट सीट और हाइस्ट वोट, सो दैट वाज सोशल डेमोक्रेट पार्टी। नाउ फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम कुछ करेंगे इम्पोर्टेंट, तो वी विल बी लुकिंग एट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड हियर। सो ट्रेड केयरफुली, तो यहाँ पे है कि दैट इंडियाज लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा प्रेजेंट पॉलिसी मेकर्स विद अ फ्रॉड चॉइस। मतलब अब देखिए दो चीज़ें हैं, प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, बोथ थिंग्स आर देयर, प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी ग्रोथ दोनों पे फोकस है। बट अब अगर हम इन्फ्लेशन के फिगर्स को देखेंगे CPI या WPI के, ठीक है ना, दोनों ही ज़्यादा है, जबकि WPI थोड़ा रिड्यूस हुआ है एज़ कम्पेयर टू अगस्त 2022, बट स्टिल हाई। उसके बाद जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फ्रॉम लास्ट 9 मंथ इट इज़ अबाउट 6%, अभी का जो फिगर इट वॉज अराउंड 7.2%। बट साथ साथ में जो द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो लुकिंग एट द रिसेशन, तो हमको ग्रोथ को भी रिवाइव करना है, प्राइस को भी स्टेबल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो RBI के सामने एक सबसे बड़ा एक चैलेंज है, वेदर टू रिस्पॉन्ड टू लेटेस्ट एक्सेलरेशन इन रिटेल प्राइस गेन, ओके, और टू पॉज द मॉनेटरी टाइटनिंग सो एज टू अलाउ फ्रेजाइल ग्रोथ टू गेन मोर ट्रैक्शन। तो अगर हम CPI की बात करें तो ये जो बिकॉज ऑफ फूड प्राइसेस इट हैज़ इंक्रीज्ड मेनली बिकॉज ऑफ वेजिटेबल एंड सीरियल प्राइसेस विच आर सर्जिंग, ओके। अगर हम लास्ट ईयर के हिसाब से कंपेयर करें तो वेजिटेबल एंड सीरियल्स दे हैव इंक्रीज बाय 18% और लास्ट मंथ के हिसाब से देखें तो 2.6%। उसके बाद जो स्टेपल ग्रेन्स हैं इंक्लूडिंग राइस एंड व्हीट दे हैव क्लाइम्ड 11.5% एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर एंड इंक्रीज ऑफ 2%। अगर हम वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स की बात करें तो दे टोटल वेट इज़ 15.7% एंड दे अकाउंट फॉर मोर देन थर्ड ऑफ द फूड एंड बेवरेज कैटेगरी। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे दैट राइस प्राइसेस दे हैव कंटिन्यूड टू राइज इन द फेस ऑफ प्रोजेक्टेड 6% शॉर्टफॉल इन खारिफ आउटपुट। फाइन, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको ईज़ करने के लिए थोड़ा एक्सपोर्ट कर्व्स भी लगाया है और नॉन बासमती राइस, बट उसके बाद भी राइस का दाम जो बढ़ रहा है। उसके बाद जो हैवी मानसून हुआ एट द व्हेन द मानसून वाज एंडिंग दैट हैज़ हिट द वेजिटेबल आउटपुट कॉजिंग द होलसेल लेवल प्राइस टू एक्सेलरेट एट 39.7%, ओके। सो अब यहाँ पे सेकेंड चैलेंज क्या है, दैट इज़ द रुपीज़ कंटिन्यूड डेप्रिसिएशन अगेंस्ट द डॉलर, okay, so that has resulted into imported inflation which is very hard to counter through monetary measures। मीन्स अगर आप देखेंगे माइकल डी पैट्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें टर्म है उन्होंने यूज़ किया है, दैट इंडिया इज़ अ नेट कमोडिटी इम्पोर्टर विद ओवरऑल थर्ड ऑफ CPI बीइंग इम्पोर्टेड। बट ओवरऑल थर्ड ऑफ CPI का मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का अगर हम बास्केट देखें, बास्केट ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन विच वी आर मेजरिंग CPI, तो उसमें से 1/3 जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं एंड सिंस दिस इंपोर्ट प्राइस इज इंक्रीजिंग, ओके, सो इट मीन्स वी आर इंपोर्टिंग द इन्फ्लेशन, दिस इज कॉल्ड एज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है ना। द सेकेंड टर्म विच इज़ यूज इज टर्म्स ऑफ ट्रेड विच इज़ अनफेवरेबल। टर्म ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, तो ये एक टेक्निकल टर्म है इकोनॉमिक्स का। टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू, इट इज़ अ रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस upon import price, it is the ratio of export price upon import price। तो अगर टर्म ऑफ ट्रेड अगर आपका लेस देन 1 हो गया तो इसका मतलब आपका इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अनफेवरेबल, ओके।
So these are the challenges which Indian policy makers are now facing. साथ साथ में अगर आप देखेंगे कि that the private sector output trends as per S&P Global Survey based manufacturing and services PMI data, that is also referring to slowdown, जिसका मैं बात कर रहा था रिसेशन टाइप का. सो अगर हम देखेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इट अफेक्ट्स रियल इंटरेस्ट रेट्स विद अ डिस्टिंक्ट लैग. मतलब अगर आपने रेट इंक्रीज़ किया, रेपो रेट इंक्रीज़ किया बाई 50 बेसिस पॉइंट अगर, तो उससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा. तो उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है, अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना है तो दैट इन्वेस्टमेंट रेट ऑल्सो फॉल्स, तो ग्रोथ ऑल्सो फॉल्स. सो दीज आर ट्विन चैलेंजेस विच द इंडिया इज फेसिंग: हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ. The third thing which is very dampening is weak export demand, weak external demand which is hampering India's export. अब उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ हम अभी कर लेते हैं, that is strengthening dollar shrinks foreign reserves across nation. तो अगर हम देखेंगे कि जो रूपी का जो वीकनिंग एक्सचेंज रेट है, ओके, इट इज़ वेरी फास्ट. तो यूक्रेनियन क्राइसिस, रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो बढ़ते ही जा रहा है, and US Federal Reserve's monetary tightening that have led the rupee to depreciate the past $82 mark. उसके बाद अगर हम फॉरेन, अब देखिए यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो हमारा जो रिजर्व्स है विच ओके, फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या क्या आता है. तो फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन करेंसी एसेट आता है, गोल्ड आता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आता है. स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स दैट्स द मेंबर्स फॉरेक्स विच इज़ हेल्ड बाय IMF एंड रिजर्व ट्रांचे पोजीशन. तो ये जो दिस एक्सटर्नल एसेट्स दे आर कंट्रोल्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी और ये यूज़ किया जाता है टू एब्जॉर्ब द शॉक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस जो अभी चल रहा है. ओके, उसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो यूज टू गिव कॉन्फिडेंस टू द मार्केट दैट व्हेन एवर द एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस कैन बी मेट, ओके, एंड RBI कैन इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बिकॉज इट हैज़ फॉरेक्स रिजर्व. अभी जो फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया का, अगर आप देखोगे तो इट इज़ $532.7 बिलियन. ओके, अगर आप डेप्रिसिएशन के केस में देखोगे तो इट इज़ -15.4%. बट इफ यू जस्ट टेक अनदर कंट्रीज लाइक सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, जापान, चाइना का थोड़ा कम ही हुआ है, पर चेक रिपब्लिक, UK, ओके, थाईलैंड, देन कोरिया, देन इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, तो इनका भी जो टोटल रिजर्व्स में जो डेप्रिसिएशन हुआ है, चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व, वो बहुत ज़्यादा हुआ है. फाइन, अगर हम देखें डेप्रिसिएशन किसका कितना हुआ है, ठीक, तो जापानीज येन देखो इट इज़ 25 ईयर लो, स्वीडिश क्रोना इट इज़ ऑल टाइम लो. अब देखिए आप पूछते हैं कि किसकी करेंसी कौन कौन सी है. दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू इट बिकॉज यू कैन फाइंड ओवर ईयर एवरी करेंसी, एवरी मेजर कंट्रीज करेंसी हैज़ बीन मैंशनड ओवर ईयर. तो UK pound it has also depreciated by 21.6%, Korean won by -18.4%, Euro by -17%, okay, South African rand, Philippine peso, Thai baht, Malaysian ringgit, Chinese yuan, Indian rupee देखिए कितना कम है. अब अप्रिशिएट कौन कौन किया है, रशियन रूबल, ब्राज़ीलियन रियल, मैक्सिकन पेसो, ओके. बाकी देखिए इतने सारे कंट्रीज़ का डेप्रिसिएशन हुआ है जहाँ पे इंडिया काफ़ी कंट्रीज़ के बाद आता है. फाइन, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व दे आर क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ एंड इट्स इंपोर्ट कैपेसिटी. ओके, अगर ड्विंडलिंग एक्सपोर्ट्स है, अगर फॉरेक्स रिजर्व अगर घटते जाता है, ओके, सो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर दोज कंट्रीज विच आर इम्पोर्ट रिलायंट इकोनॉमीज. ओके, देयर आर मैनी कंट्रीज विच आर डिपेंडेंट ऑन ओवरसीज फूड परचेजेस एंड दे आर फाइंडिंग इट हार्ड टू पे फॉर कमोडिटीज सच एज राइस एंड व्हीट. उसके बाद अगर डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो इट हैज स्ट्रेंथन बाय 15% एंड दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ अदर करेंसीज इज डेप्रिशिएटिंग. ओके, नाउ फ्रेंड्स लेट्स टेक एन एडिटोरियल रिकवरी एनालिसिस दैट पॉइंट्स आउट व्हाट इंडिया गॉट रॉन्ग. ठीक है ना, तो मैं आपका इसको एक जिस्ट बता देता हूँ. वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है करेक्टिंग कोर्स विच कैप्चर्स द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन ग्लोबल पॉवर्टी. तो इस रिपोर्ट ने कहा है कि द नंबर ऑफ पीपल, एक कोविड-19 पैंडेमिक की बात कर रहा है, ठीक है ना. So the number of people living in extreme poverty has rose by 7 crore million in 2020 and the global poverty rate has increased from 8.5% to 9.3%. और ये पहली बार हुआ है पिछले 20 साल में कि जो पॉवर्टी रेट है वो ऊपर गया है. उसके साथ साथ ग्लोबल इनइक्वालिटी भी बढ़ा हुआ है. नाउ द रिपोर्ट सजेस्ट दैट वन ऑफ द बेस्ट वे टू फाइट दिस सिचुएशन इज फिजिकल पॉलिसी, दैट इज एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट. ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पुअरर कंट्रीज थी दे वर अनएबल टू यूज़ द फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिवली.
fine, but the report says that there should be 3 priorities for fiscal policy. The first should be targeted subsidies that benefit the poor. तो poor के हाथ में directly पैसा डालो. Then public investment to build resilience in long term, and revenue mobilization that should rely on progressive direct taxation. अब इन तीनों पिलर्स को हम लेते हैं और ये देखते हैं कि इंडिया में देखिए क्या क्या हुआ है. तो अगर हम वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट देखें which has been taken from Consumer Pyramid Household Survey conducted by Center for Monitoring Indian Economy. Okay, it says that 5.6 crore people are likely to have slipped into poverty as India's GDP fell by 7.5% in 2020-21 and the population below poverty line in India stood at 10% in 2020. उसके बाद गवर्नमेंट ने भी फिस्कल स्टिमुलस का सहारा लिया बट खर्चा भी किया ₹2 लाख करोड़ और 1% ऑफ GDP. बट इफ यू विल जस्ट सी दैट मेजॉरिटी ऑफ दिस पैकेज टुक द फॉर्म ऑफ क्रेडिट लाइन्स एंड रीफाइनेंसिंग स्कीम्स टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस. ओके, सो विच वॉज एन इनएफिशिएंट मैकेनिज्म टू रियलाइज द गोल ऑफ पुटिंग मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल टू बूस्ट हाउस होल्ड लेवल कंजम्पशन. तो ये जो देखिए पहला जो पिलर का देखिए जो पहला पॉइंट है पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड दिस टारगेटेड सब्सिडीज दैट बेनिफिट द पुअर. तो ये नहीं हुआ है. ठीक है, अगर आप देखेंगे मनरेगा में तो यहाँ पे द वेज वॉज इंक्रीज बाई वेरी माइनर वे ₹20 पर डे. ओके, एंड इट वॉज इनएडिक्वेट ऑल्सो. उसके बाद अगर हम देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसमें 80 करोड़ पीपल जो हैं वो इंक्लूड होते हैं. इट वॉज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2020 एंड नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड. इसके बाद भी अगर आप इंडिया का रैंक देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तो इट इज़ 107th आउट ऑफ 120 कंट्रीज. अब हम आते हैं टैक्स पॉलिसीज़ के ऊपर. यहाँ पे 2 टैक्स पॉलिसीज़ की बात हुई है, एक कॉर्पोरेट टैक्स और दूसरा GST. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि पार्लियामेंट मतलब देयर वाज रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स फ्रॉम 30% टू 22%. ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि CMI का रिपोर्ट कहता है कि देख इससे क्या हुआ कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स तो बढ़ा बट इन्वेस्टमेंट अभी भी कमी है एंड द इनइक्वलिटी हैज़ इंक्रीज्ड. ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को बढ़ाया गया. ओके, देयर वाज आल्सो इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कुकिंग एंड ट्रांसपोर्ट फ्यूल. तो व्हाट हैपेंड दैट इट लेड टू डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन ऑन द पुअर. बट व्हाट इज द थर्ड पिलर ऑफ दिस रिपोर्ट? what should be the third pillar of fiscal policy? That is progressive direct taxation rather than indirect taxes. But यहाँ पे this article is suggesting that government went on to increase the rate in indirect taxes, which created more burden on the poor. On the other side, it reduced the corporate tax, जबकि corporate tax rate को बढ़ाना चाहिए था. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.